your online social science classes, and I am here, your social science teacher Sangeeta Behra. Hello students, I am back with your online social science classes for class 7th, and here we are going to start your history subject, okay? And the chapter number 1, which is tracing changes through 1,000 years. मतलब we should trace the changes what is happened before the 1,000 years. Okay, so in this chapter we are going to study out about the different types of things through which we can bring out the history. So at that moment we will see how the old historian peoples are bring out the changes in this world through different type of histories. Okay, so पहले क्या होता था, लोग चित्रों के माध्यम से सारी चीज़ों को लोगों के सामने दर्शाते थे. ठीक है, मैप बनाते थे या फिर कोई बड़ी सी चीज़ें जिनको देख के उन्हें आश्चर्य लगता हो उसकी नए नए चित्र बनाकर लोगों के सामने पेश करते थे कि इस तरह की चीज़ें दुनिया में पाई जाती थी, जिसकी वजह से लोगों का ज्ञान बढ़ता था. ठीक उसी तरह लोगों ने क्या किया, मैप बनाना स्टार्ट किया. मैप मतलब क्या, मानचित्र. ओके, जिसके अनुसार वो किस जगह पे क्या है उसका एक छोटा सा चित्र अंकन करते थे और उसको एक बड़े से मैप में कन्वर्ट करते थे. ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही हिस्टोरियंस ने भी अपने कुछ मैप्स को रेडी किए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को मैप को जानने की इच्छा जागृत होती थी और लोग उस मैप के थ्रू डिफरेंट जगहों को जाके अपने लोगों के साथ मिलते थे या फिर डिफरेंट लोगों के साथ मिलके डिफरेंट जगहों के बारे में जान के उसका एक चित्रांकन किया करते थे. ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसमें क्या सीखेंगे कि पहले के ज़माने में जब नए लोग आए हमारे देश में तो उन्होंने किस तरह से हमारे देश के जगहों के बारे में जाना और उसका मानचित्र तैयार किया. ठीक है, तो हियर वी विल स्टार्ट विथ 2 type of maps which is done by 2 type of persons. One is Arabian person and another one is the Greek person. Okay, so who is that Arabic person we can see through this map. See, this is the map number 1 in your page number 1 of your chapter number 1. Okay, check this one. This is the section of the world map drawn by the geographer Al-Idrisi in the 12th century, showing the Indian continent from land to sea. Okay, this portion he made as the land portion. Okay, and this portion he made as the sea portion. So here we can see the south portion in the place of the north portion and the north portion in the place of the south portion. Okay, so here he had explained about the south portion of India, and this is the Sri Lanka island which he has kept in the north direction. Okay, so like this he has made the map. So through this map number 1 we can check the southern portion which now we are seeing in south part of our India, and he has done in the opposite direction. Okay, so let's have a look on which date he has started to make the map or he had drawn the map. So this is the map number 1 which he has made in 1154 CE. CE what we had studied in our class 6th, that is known as Common Era. Okay, so it is being drawn by the Arab geographer whose name is Al-Idrisi, and he has drawn this map number 1 in the century of 12th, and the date is, the year is 1154 CE, that Common Era. Okay, so the section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. So as it is written in the Arabic language, we can't able to read which place he has quoted in the map. Okay, तो हम लोगों को इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हम लोगों को किसी को तो अरबिक आती नहीं है ना,
तो अरेबिक जानने के लिए हम लोग को अरबिक भाषा भी सीखनी पड़ेगी ताकि हम लोग इस मैप को अच्छे से स्टडी आउट कर सकें। तो वो कभी हम लोग ज़िंदगी में सीखेंगे तो उस समय इस मैप को भी आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हो कि किस जगह को उसने क्या नाम दिया हुआ था। ओके, तो इस तरह से उन्होंने मैप तैयार किया था। और मैप नंबर 2 विच इज़ मेड बाय द फ्रेंच कार्टोग्राफर in the year of 1720. Okay, so the two map are quite different from each other, क्योंकि यहाँ देखिए in this map number 1 what Al-Idrisi has done, he has done the south direction in the north direction and north direction in the south direction. Okay, means he has first given the information of sea portion and then he has given the information of the land portion. But in French cartographer map, that is map number 2, see this is the map number 2 which we can see in our page number 2. Okay, this map is drawn by whom? The French cartographer. Okay, the French cartographer has drawn this map and he has shown, as we are also seeing the map in today's scenario, in the same way he has shown the map to us. Okay, so he has kept all the direction in the particular direction it seems, and he has shown all the things through this map. See, check this map in your books. Okay, and you can able to see how many places he has referred in this. And at that time he used to give like the French language it seems. In the French language it seems he has given the names of the places which we are having in new terminology in now cases. Okay, मतलब आज के ज़माने में हम लोग जिन चीज़ों को देख रहे हैं वो चीज़ को उसने तब फ्रेंच भाषा में लिखा था मैप में, ठीक है, और उसने सारे मैप को डिस्क्राइब किया था कि कहाँ से नदी बह रही है और किस किस जगह से का नाम क्या क्या था, उसने इस मैप में सब कुछ लिखा है। तो आप लोग जब भी मैप स्टडी आउट करो तो अपने बुक से स्टडी करके पता लगाओ कि आखिर सेम जगह वहीं पे है या नहीं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, गुजरात। सी चेक दिस वन, गुजरात लिखा है ना, GUZURAT, जबकि आज हम लोग क्या लिखते हैं, GUJURAT, है ना। तो कुछ इस तरह से ही उन्होंने बहुत सारे जगहों का नाम लिखा हुआ था, ठीक है, चित्तौड़, बिहार, ओडिया, ठीक। तो एट दैट टाइम व्हाट द पीपल्स यूज्ड टू टेल द एरिया, दैट टाइम ही यूज्ड टू राइट द सेम थिंग इन द मैप। ओके, सो स्टूडेंट्स, you will check this map, whatever doubt you can have, just ask me. Okay, so इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये मैप बनाया गया था किसके द्वारा, the French cartographer who has made this map number 2. Okay, it's defined the subcontinent from the early 18th century, Altas Novi of Kyllini de Ilse, इसमें उन्होंने अपना मैप भी बनाया हुआ था, ठीक है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जाना कि 2 टाइप के मैप बने थे, कौन सी सदी में, 12वीं सदी में और एक 18वीं सदी में, ठीक है। इन 12th century द Arab geographer Al-Idrisi has made the map, and in the 18th century the French cartographer has made the map. Okay, so like this they had described the places which are found in our country India, and they had made the places names also in the map. Okay, so map 2 are made nearly 600 years after map 1 has made, during which time information about the subcontinent have changed considerably. तो डिफरेंट जगहों के डिफरेंट नाम भी तब हो चुके थे, जबकि पहली बार अरब ज्योग्राफर ने बनाया था मैप, अल-इदरीसी ने। उसके बाद जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने मैप बनाया था उसमें काफ़ी चेंजेस आ गई थी इन 600 सालों में, क्योंकि पहली मैप 600 सालों के बाद दूसरी मैप बनाई गई थी, ठीक है। सो दिस मैप सिम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन द पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। तो जो 18वीं सदी में बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, वो हम लोग को ज़्यादा प्रोमिनेंट है और हम लोग उसके साथ ज़्यादा एक्वेंटेड है ना। तो आज भी हम लोग अपना मैप देखते हैं तो वो भी किस
इसी तरह ही है जो कि फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 18वीं सदी में बनाया था, है ना। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, जबकि यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट के बारे में पढ़ेंगे इन द चैप्टर 6। ओके, तो तब तक हम लोग बस इसके बारे में इतना जानते हैं कि ये 2 मैप बनाए गए थे 18वीं सदी और 12वीं सदी में, जिसके द्वारा हम लोगों को अपने देश में पाए जाने वाली जगहों के बारे में अच्छे से पता चला था। ठीक है, तो हियर वी विल look at the areas in the interior of the subcontinent on map 2. Are they are detailed as those on the coast? Follow the course of river Ganga and see how it is shown. Why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and inland areas in this map? तो आपको इससे कैसे पता चलेगा, क्योंकि आज भी हम लोग के मैप में रिवर्स गंगा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे रिवर गंगा, जैसे कि हम लोग ने पिछले बार 6th क्लास में किया था, हाउ पहले चैप्टर में, ठीक है, उसमें भी हम लोग ने गंगा रिवर के बारे में जाना था, क्योंकि तब के ज़माने के लोग गंगा रिवर के साइड में बहुत जनसंख्या पाई जाती थी, क्योंकि सबके मगध के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी गंगा रिवर है, देखो, दिस वन इज द रिवर गंगा विच फ्लोज फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, सी, and it's having their tributaries also. Okay, so like this the Ganga river has flowed down from the north portion to the south portion and it's get mixed with the Bay of Bengal. At that time उन्होंने क्या लिखा था Bay of Bengal को? Gulf de Bengale. ओके, तो इस तरह से कुछ उन्होंने अपनी फ्रेंच भाषा को यूज़ किया था इस मैप को तैयार करने के लिए। तो हियर हम लोगों ने इतना पता चल गया कि कैसे मैप को उन्होंने यूज़ किया था और क्या क्या नाम उन्होंने रखा था जगहों के बारे में, क्योंकि वो उन तब उसे फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे। ओके, तो यहाँ हम लोग को इतना पता चल गया कि 2 टाइप के मैप्स बने थे, जो कि 12वीं सदी और 18वीं सदी में बने थे। एक बना था अरब ज्योग्राफर के द्वारा और दूसरा बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, है ना। तो here we will conclude that part. Equally important is the fact that the science of cartography differed in 2 the periods. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past are produced. Okay, तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं ऑथर हमें कि दोनों साइंस इक्वली इम्पोर्टेंट रखते हैं, अपना इम्पोर्टेंस मतलब अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं। या तो हिस्टोरियन भी अपना जो मैप बनाते हैं उसके थ्रू भी लोगों को जानकारी मिलती है कि इस जगह पे ये चीज़ें हैं, और जो कार्टोग्राफर होते हैं जो कि मैप्स बनाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, उनकी चीज़ें भी उतनी ही मायने रखती हैं इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को इतना पता चल गया कि मैप के द्वारा हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो क्या क्या मिल सकती है इन्फॉर्मेशन? नंबर 1, हम लोग को जगहों के बारे में पता चलता है कि किस जगह पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, नंबर 2, हम लोग को रिवर्स के बारे में पता चलता है कि कहाँ कहाँ रिवर बह रही हैं। ठीक है, और नंबर 3, हम लोग को ये पता चलता है कि वहाँ किस टाइप के लोग रहा करते हैं और उस जगहों का नाम क्या क्या है ना। तो हियर वी विल लेट्स स्टार्ट विद द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, कि हम लोग के ज़माने में और तब के ज़माने में क्या क्या नाम यूज़ किया जाता था जगहों के बारे में। ठीक है, तो उस समय क्या बोला जाता था और आज के ज़माने में हम लोग क्या बोलते हैं, इसके ऊपर इस जगह पे डिस्कशन किया गया है। सो इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड द मीनिंग्स। तो यदि हिस्ट्री में टाइम के द्वारा चीज़ें बदल सकती हैं, मतलब वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं ना, तो उस तरह से लैंग्वेज और मीनिंग क्यों नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, है ना। तो कुछ इसी तरह ऑथर ने इस जगह पे हमें बताना चाहा है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में टाइम के अनुसार जिस तरह चीज़ें बदलती हैं, ठीक उसी तरह लैंग्वेज और मीनिंग्स भी बदला करते थे। सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली with the years. Okay, the medieval Persians, for example, is a different from modern Persian. The difference is not just with the regard of grammar or vocabulary, the meanings of words also change over time.
तो वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है ना। तो आज हमारे पास ये है तो ज़रूरी नहीं कि कल वही चीज़ हमारे पास हो, मे बी उससे ज़्यादा हो सकता है, मे बी उससे कम भी हो सकता है। ओके, तो मॉडर्न ज़माने और समसामयिक काल में जो भी चेंजेस हुई थी हिस्ट्री में, उस चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो हम लोग यूज़ करते, चलो हम लोग पहले क्या बोलते थे भारत को, हिंदुस्तान, है ना। तो हिंदुस्तान को अभी क्या बोलते हैं, इंडिया। तो मोस्टली हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं आजकल, आजकल हम लोग हिंदुस्तान नहीं बोलते, आजकल हम लोग सिर्फ इंडिया या फिर भारत बोलते हैं, है ना। सो लाइक दिस, मतलब वक्त के साथ देश का नाम और उसकी परंपराएं भी बदली हैं, ठीक है। द सेम थिंग द ऑथर इज गोइंग टू टेल अस इन दिस पैराग्राफ्स। ओके, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century बाय मिन्हाज-ई-सिराज, ए chronicler who wrote in Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the lands of between Ganga and Yamuna. He used the term in the political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultanate, or you can say Delhi Sultan. Okay, the areas included in the term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. तो सबसे पहले हिंदुस्तान नाम किसने रखा था, एक क्रोनिकलर, मतलब जो कि मोस्टली एक न्यूज़ स्प्रेड करता था, ठीक है। तो उसने रखा था नाम, उसका नाम था तब मिन्हाज-ई-सिराज, जिन्होंने हिंदुस्तान नाम का नाम रखा था, हिंदुस्तान, ठीक है। तो उन्होंने किसको लिया था तब, पंजाब हरियाणा जगहों को लेके, और गंगा और यमुना के पास जितने लोग बसते थे उसको लेके उन्होंने सोचा था कि इतना ही एरिया है जिसको कि हिंदुस्तान बोला जाता था। और तब के दिल्ली सुल्तान जो थे उनके अंडर जितनी एरिया है दैट इज़ नोन एज द हिंदुस्तान, ये उसकी सोच थी, ठीक है। सो द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंड ऑफ द सल्तनत। तो जितना जितने दिल्ली सुल्तान लोग अपना सल्तनत बढ़ाते थे, अकॉर्डिंग टू डैट वो उस एरिया को हिंदुस्तान के अंदर बनाता था, तो वो उसको हिंदुस्तान कंसिडर करता था, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पता चल गया कि मिन्हाज जो कि एक क्रॉनिकलर था दिल्ली सुल्तान के अंदर, उन्होंने दिल्ली सुल्तान के अंदर जितनी उनकी सल्तनत थी उसी को ही हिंदुस्तान कंसिडर किया था, ठीक है, जो कि पंजाब हरियाणा और गंगा और यमुना के पास वाले एरिया को मिला के बना था। तो तब दिल्ली सल्तनत की साउथ इंडिया के ऊपर कोई पकड़ नहीं थी, दे आर नॉट डूइंग एनी कैप्चर ऑन द साउथ इंडिया पोर्शन। ओके, सो एट दैट टाइम दे नॉट यूज्ड टू डू और कंसिडर दोज एरिया एज द हिंदुस्तान। तो ये किसने किया था, मिन्हाज-ई-सिराज ने, जो कि 13वीं सदी में किया था। ठीक उसी तरह 16वीं सदी में बाबर ने भी अपने एरिया को ही हिंदुस्तान कंसिडर किया था, जिस पर उसका अपना कब्जा था, उसकी सल्तनत का कब्जा था, ठीक है। तो उस समय उसने भी कुछ साउथ इंडिया के पोर्शन को कब्जा किया था, जिसको भी वो हिंदुस्तान कंसिडर करता था, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इवन ज्योग्राफिकल एरिया जो कि रिसोर्सेज से भरती है, उस जगह को भी अपने हिंदुस्तान एरिया में कंसिडर किया था। तो इस तरह से कुछ अमीर खुसरो 14वीं सदी में भी अपने किसी पोएम में हिंदुस्तान का जिक्र हिंद नाम से किए हुए हैं। तो अमीर खुसरो का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी मशहूर कवि रह चुके हैं उस जमाने में, बाबर के ज़माने में, ठीक है। सो एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर दैट somehow Amir Khusro has also considered Hindustan as Hind in the year of 14th century. Okay. So while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. तो इंडिया को जैसे आजकल हम लोग पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग में भी लेते हैं, तब के ज़माने में हिंदुस्तान को उस तरह से नहीं लिया जाता था। उन्हें राजनीतिक नाम नहीं दिए गए थे, बस ये दिया गया था कि इन सब चीज़ों के मतलब इन जगहों को कैप्चर करने वाला सल्तनत ही हिंदुस्तान कहलाता है, और उसको राजनीतिक या फिर राष्ट्रीय नाम की महत्वता या फिर मान्यता नहीं मिली थी, ठीक है। सो हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज
दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। तो आजकल जितने भी इतिहासकार हैं उन्हें इन टर्म्स को ठीक जगह पे यूज़ करना पड़ता है ताकि ये पुराने इतिहास में जिन नामों का यूज़ किया गया है उसका मीनिंग चेंज ना कर दें, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हम लोग यूज़ करते हैं फॉरेनर्स को बोलने के लिए फॉरेनर वर्ड, ओके, जो कि हिंदुस्तानी नहीं है या फिर भारतीय नहीं है, उन्हें हम लोग फॉरेनर बोलते हैं ना। तो तब के ज़माने में क्या होता था, लोग डिफरेंट भाषा वाले हमारे देश में थे तो उनकी डिफरेंट नाम यूज़ करते थे। जैसे यूजुअली हिंदी में परदेसी यूज़ किया जाता है फॉरेनर्स के लिए, जो कि हमारे देश का नहीं है, पराये देश का है, उसे परदेसी कहा जाता है ना। ठीक उसी तरह पर्शियन में लोगों को अजनबी बोला जाता है, ये हम लोग की जान पहचान के नहीं है। तो ठीक उसी तरह फॉरेनर को तब कुछ लोग जो कि फॉरेस्ट में काम करते हैं फॉरेनर करके बोलते थे। तो बहुत जगहों पे, बहुत गांव में भी इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था कि परदेसी है और या फिर अजनबी इंसान है जिसको कि फॉरेनर कंसिडर किया जाता था उस ज़माने में, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, दोज हु आर नॉट इंडियन दोज आर ओनली द फॉरेनर्स, ओके। सो इस तरह से लोगों की शब्दों के मीनिंग भी चेंज हुआ है, किस तरह, टाइम की परिवर्तन के होने की वजह से, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इतना जान लेते हैं कि वक्त के साथ बहुत सारी भाषाएं चेंज होती हैं, बहुत सारे लोगों के तौर तरीके चेंज होते हैं, इवन लोगों को बुलाने का तरीका और देश को बुलाने का तरीका, जगहों को बुलाने का तरीका भी चेंज होता है। तो वक्त बदलता रहता है, किसमें, हिस्ट्री में, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, मतलब इतिहासकारों ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी हिस्ट्री को और अच्छी तरह लोगों के सामने लाने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोग यहीं पे अपना पार्ट ख़त्म करते हैं। वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट अबाउट द हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, व्हाट दे आर यूज्ड टू ब्रिंग आउट द हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ओके। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and be safe in this pandemic period and keep your happy learning. Thank you.